Hello everyone, this is Bansuri Gami, School of Science, RK University, presenting here the NEET Biology Crash Course. On behalf of RK University, I welcome you all in the course. I hope you learned something from the course. Okay, so what we are going to learn today is a basic topic which can be helpful to you for your NEET courses. So let's start with our topic. So the main thing about the human body is to move, right? In lockdown we don't like a steady place. हमको हिलना अच्छा लगता है, हमको जाना अच्छा लगता है कहीं पे भी. So on basis of that we are going to learn the movement and locomotion of human body. Movement and locomotion के बीच में जो thin line है that we are going to understand in brief. So let's see which topics we are going to cover today. We are going to cover the difference between movement and locomotion. उन दोनों के बीच में जो दो वर्ड मेन है, उन दोनों के बीच में थीन लाइन डिफरेंस क्या है. टाइप्स ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट के कितने टाइप्स हैं, वो मसल सिस्टम जो हमारे बॉडी के अंदर है वो कैसे वर्क करता है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो कौन कौन से टाइप के मसल्स आर अवेलेबल इन आवर बॉडी. जॉइंट्स के कितने टाइप्स है, जॉइंट का फंक्शन क्या है, जॉइंट के लिए मटेरियल क्या इम्पोर्टेंट है, एंड द मेन इम्पोर्टेंट थिंग इज द डिसऑर्डर, राइट? ड्यू टू लैक ऑफ समथिंग और ड्यू टू एक्सेस ऑफ समथिंग कुछ चीजें बढ़ जाती है बॉडी में, कुछ चीजें घट जाती है. तो ये इम्बैलेंस की वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं मस्कुलर सिस्टम में, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन ब्रीफ. Okay, so before we start our basic topic, let's do a hookup activity which will connect to you to me. Okay, so let's start with that. Again, let me tell you one thing. मैं एक इमेज शो करूंगी, उस इमेज में यू हैव टू टेल मी कि कौन सा वर्ड मिसिंग है, राइट? सो आई गिव यू 10 सेकेंड टाइम एंड नेक्स्ट विल बी द इमेज ऑफ दैट थिंग. सी, दिस इज एन इमेज, ये एक इमेज है. उस इमेज में डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस है. इन दैट बॉक्सेस यू हैव टू टेल मी कि ऊपर के बॉक्सेस में जो एम्प्टी है वहां पे क्या होना चाहिए, राइट? यू कैन गिव योर आंसर इन अ चैट बॉक्स विथ योर लॉजिक. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 2, 1, and that's all. Okay, so let me check. Okay, okay, so your answer can be red, it can be white on different logic. Now just you have to think what could be the answer, right? So we will start with the basic difference between movement and locomotion. ये दोनों चीजें है क्या? So this is the image which show you the current definition of the movement and locomotion. If you are not going anywhere, you are moving your hands, you are moving your fingers, you are moving your eyelids, it will be count as the movement. If you are going somewhere, मुझे इस जगह से इस जगह पे जाना है, that will be locomotion. If I want to raise my hand, if I want to say hi, it will be the movement only. But if I am going towards one person, मैं एक दूसरे व्यक्ति की ओर जाती हूँ, that will be my locomotion, because मैंने यहाँ से यहाँ तक अपना place change किया है, right? अगर मैं अपना प्लेस चेंज नहीं करती हूँ, दैट विल बी मूवमेंट. अगर मैं अपना प्लेस चेंज करती हूँ, दैट विल बी लोकोमोशन. सो हियर आर सम एग्जांपल्स दैट इफ यू आर ब्लिंकिंग योर आईज, हम अपनी आईलिड्स ब्लिंक करते हैं, वो क्या है? दैट विल बी मूवमेंट. पर अगर हम वॉक करते हैं, हम रन करते हैं, हम जंप करते हैं, दैट विल बी काउंट एज दी लोकोमोशन. So let's see how many type of movements are there. So first is the amoeboid type of movement. There are three movements as you can see here in the chart: amoeboid movement, ciliary movement and muscular movement. ये movement क्या है? बॉडी की ओर से जाता हुआ कोई एक नोटिस है टू द सिस्टम कि
कौन सी टाइप की मूवमेंट करनी है. मस्कुलर मूवमेंट इज टोटली डिफरेंट, सिलियरी इज टोटली डिफरेंट एंड अमीबॉइड इज टोटली डिफरेंट. नाउ सी, अमीबॉइड मूवमेंट्स में क्या होता है, अमीबा जैसे मूव करता है, स्यूडोपोडिया, राइट, फॉल्स लेग वी आर कॉलिंग इट एज. तो फॉल्स लेग के जैसे वो स्लोली मूव करता है, that is known as amoeboid movement. But in case of human body में वो कौन कौन से सेल है जो amoeboid movement शो करते हैं, that are macrophages and leukocytes, right, blood cells. In case of amoeboid movement, we are showing it here, ciliary movements. Now how the cilia is moving like this, right, you are considering my hand as the cilia, and these are known as the ciliary movements. In case of our respiratory tract में जो भी वॉल है, रेस्पिरेटरी वॉल, वो उसके पास टेंडेंसी है टू गाइड द सिलियरी मूवमेंट, तो वो क्या करेगा, सिलियरी मूवमेंट शो करेगा. Third one is the muscular movement. We all are aware about the muscular movement. Why we are going to gym? To build our muscles, right? So वो क्या करेगा, contraction and relaxation. If I am doing this, it is known as muscular movements. Next will be the type of muscle. Okay. So in case of muscles, we can see here different three type of muscles are there. First is the skeletal muscle. Next one is the visceral muscle, and third one is the cardiac muscle. Let's start with the simplest. कार्डियक मसल क्या होता है, कार्डियोलॉजी मतलब कि जो स्टडी हार्ट के रिलेटेड हो, ह्यूमन हार्ट के रिलेटेड, दैट इज कार्डियोलॉजी. तो कार्डियक मसल में हम क्या स्टडी करेंगे, हार्ट के मसल्स. हार्ट के मसल जो सॉफ्ट है वो क्या है, cardiac muscle hai. Visceral muscles are very smooth muscles which we will study in detail. All these three type of muscles we will see in detail. This is just an overview. Skeletal muscles जो skeleton system के साथ attached है वो वाले. So this is the detailed one. Okay, skeletal muscle appear striped. यहाँ पे ए फिगर है वो इंडिकेट करता है स्केलेटल मसल. तो स्केलेटल मसल में यू कैन सी द स्ट्राइप, वो रिबन के जैसा हम दिख सकते हैं उसमें. वो रिबन क्या है, वो लाइट एंड डार्क कलर के बैंड से विच इंडिकेट्स डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन, राइट. तो वो स्केलेटल मसल जो रिबन की तरह शो करता है, उस स्केलेटल मसल में डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन की वजह से वो ऐसे स्ट्राइप है, उसमें स्टेरेशन यू कैन सी, मतलब कि एक bunch of muscles है वहां पे. Next is the cardiac muscle. In case of figure B, here you can see B figure शो कर रही है कि कार्डियक मसल कैसे ब्रांचेस में एक दूसरे के साथ है and how they are behaving here. You can see a net-like structure in which cardiac muscle is there. Next is the smooth muscle. What we called it as the visceral muscle. You can see here, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मसल के शेप है वो एक एक सेल का शेप स्पिंडल की तरह है. वो स्पिंडल शेप मसल एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके वो विसरल स्मूथ मसल बनाते हैं. यू कैन कॉल इट एज स्मूथ मसल ऑल्सो एज वेल विसरल मसल ऑल्सो. This is the image of full muscle band. In case of this muscle band, you can see here a muscle bundle, blood capillaries, sarcolemma and muscle fibers. So how you can differentiate all that things? Yes. In case of this diagram, you can find here fascicle which shows you different muscle bundle. वो क्या है, different muscle के जो फेब्रिल्स है उसका एक बंच है, दैट इज नोन एज फेसिकल. वो एक फेसिकल मतलब कि जो सारे ग्रुप है वो सारे ग्रुप्स एक पूरा मस्कुलर बंडल बनाते हैं. उस बंडल में क्या क्या चीजें अवेलेबल है, muscle fiber is there. You can see this muscle fiber as the pink color
इंडिकेशन सार्कोलेमा से। सार्कोलेमा पूरा एक फाइबर स्ट्रक्चर है एंड ब्लड कैपिलरीज है टू प्रोवाइड द ऑक्सीजन टू द सार्कोलेमा region as well fibers. Okay, so in that case, that was the structure of muscle. Now this is the structure of relaxed muscle. You can say if your hand is like this, it is not in stretch condition. Stretch is known as this condition, right? So this is very relaxed condition. In that relaxed condition में कैसे दिखता है हमारा muscle system? So this is an image of that muscle system which we have indicated it by the yellow and brown color stripes. Right, yellow जो thick color है वो different protein show करते हैं and जो यहाँ पे thin पतली पतली filament जैसा है वो different protein है. In case of the image, you can see here the thick one band is the myosin protein and the thin filaments are the actin protein. जो light orange color के thin filament है, they are the actin protein. This thick one is the myosin protein. हम यहाँ पे ऊपर डिफरेंट डिफरेंट बैंड पैटर्न भी देख रहे हैं. सो व्हाट इज दैट बैंड पैटर्न? कि यहाँ पे एक फुल स्ट्रैंड येलो बैंड है, आप कंसीडर कर लीजिए, और उसके बीच में हमने क्या दिया है? एच जोन. एच जोन इज द स्टेडी जोन विच इंडिकेट्स एम लाइन वेयर ओनली एंड ओनली थिक फिलामेंट ऑफ प्रोटीन विल बी देयर. नाउ मैंने पहले क्या बोला था? येलो कलर इज इंडिकेटेड मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंस, राइट. तो यहाँ पे एम लाइन पे क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रोटीन होगा. नेक्स्ट टू एम लाइन दोनों तरफ देखिए आप, ए बैंड है, राइट. तो ए बैंड में क्या है? ए बैंड का पूरा कवरेज आप देखिए तो आपको दिखेगा कि वहां पे पतली वाली जो फिलामेंट है वो भी है और ये थिक फिलामेंट है वो भी है. तो दोनों का ओवरलैपिंग जहाँ पे होता है, मतलब कि एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन का ओवरलैप जो जो भी मसल सेल में होता है उसे बोलते हैं ए बैंड. वो रीजन ए बैंड है. एंड नेक्स्ट विल बी द वेरी सिंपल थिन फिलामेंट. थिन फिलामेंट कौन सा है? फिर से एक्टिन, राइट. तो एक्टिन फिलामेंट का जो सिर्फ और सिर्फ एक्टिन वाला रीजन है उसे हम बोलते हैं आई बैंड. Okay, and the boundary line is the Z disc, which we called as Z disc also, right? Boundary line कौन सी है? Z disc है. उसके अंदर क्या आएगा? एक्टिन वाला फिलामेंट जो जो हम बोलते हैं आई बैंड. Next will be the overlapped region which is made up of myosin as well actin. We are calling it as the A band. बीच में जो दोनों के बीच में है वो क्या है? एम लाइन है, उसे हम बोलते हैं एच जोन. The hero of the image is actin and myosin only. Okay, this is the actual image under microscopy. You can see here the anatomy, what we called it as the I'm sorry, this is the actin portion which is at the side. दोनों साइड पे है वो एक्टिन है. अंदर जो ओवरलैप हो रहा है वो कौन सा रीजन है? दोनों ओवरलैप हो रहा है वो रीजन एक्टिन एंड मायोसिन के अल्टरनेट फिलामेंट्स है. एंड बीच वाला जो है वो एम लाइन विच ओनली शोज द प्रेजेंस ऑफ थिक फिलामेंट विच इज मायोसिन. ओके, वंडरफुल. Next is the question for you. Okay, so you have to give me answer within 10 seconds. Next is the question. Please focus here. Okay, so during muscle contraction, the length of the following get reduce. कौन सी चीज ऐसी है जिसकी लेंथ रिड्यूस होती है? Your time will start again. Okay, so you will be having plus 2 seconds. Okay, please reply me in chat box. मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो कौन सा जोन रिड्यूस होता है? एच, आई, जी और सार्कोमियर. Okay, time's up. Okay, thank you for reply. So next is again an important one,
स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो हमारा एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, मसल को एक मैसेज देते हैं कि उसको कैसे मूव करना है, उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है। तो बेसिकली व्हाट आई हैव रिटर्न हियर इज ऑलरेडी इन द इमेज। आप लोग ये इमेज जो है वो ध्यान से पढ़ लीजिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। सो फिगर 1 इज इंडिकेटिंग अ पोर्शन ऑफ एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट कैसे बनता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन अलग अलग कंपोनेंट है, ट्रोपोनिन है, ट्रोपोमायोसिन है एंड एफ एक्टिन है, राइट। एंड सेकेंड फिगर में आप देख सकते हैं कि कुछ लिखा है मायोसिन मोनोमर। ओके, वहां पे नहीं जाना है, हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, फिगर ए से। तो फिगर ए इज मेड अप ऑफ डिफरेंट थ्री मॉलिक्यूल्स, वन इज ट्रोपोनिन, अनदर इज ट्रोपोमायोसिन, थर्ड इज द एफ एक्टिन। एफ एक्टिन क्या है, अगेन फिलामेंटस एक्टिन है। ट्रोपोनिन देखते हैं आप तो पता चलता है कुछ फ्लावर जैसा लग रहा है, राइट। that flower is made up of three molecules, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, troponin is always be in three molecular pattern, वो always three के बंच में ही रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट इज द मायोसिन मोनोमर। मायोसिन मोनोमर आप देखोगे तो कुछ सर्प जैसा लग रहा है, राइट। सो दैट इज इंटरबाइंड ऑफ द मॉलिक्यूल। वो दोनों मॉलिक्यूल है वो इंटरबाइंड हुए, मतलब कि वहां पे कितने मॉलिक्यूल्स है, दो मॉलिक्यूल है। इट इज मेड अप ऑफ मैरोमायोसिन। दिस मायोसिन मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ मैरोमायोसिन। नाउ यहाँ पे डिफरेंट टू पोर्शंस वी कैन सी, टेल एंड हेड। ओके, टेल में क्या है, लाइट वेटेड मायोसिन है, तो इट इज नोन एज light meromyosin. In case of head, it is having heavy meromyosin. Okay, next, if we are look at the figure, head के पास different two regions है, right. One is indicated as actin binding site, जहाँ पे actin protein bind होता है। Another is the ATP binding site, जहाँ पे ATP protein bind होता है। एक्टिन बाइंडिंग साइट क्या है, वो ब्लॉक होता है ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल से। एक्टिन बाइंडिंग साइट, वहां पे एक्टिन बाइंड करेगा तो बाइंड कौन सा मॉलिक्यूल करेगा, ट्रोपोनिन। तो मायोसिन के ऊपर एक्टिन का कौन सा मॉलिक्यूल आएगा, ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल, वो वहां पे बाइंड कर जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्शन के ड्यूरिंग क्या होगा, अभी हमारी जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है उसके पास न्यूरोट्रांसमीटर्स है, राइट। अगर मुझे मूव करना है तो मेरे बॉडी को एक मैसेज पहुंचाना होगा टू माय आईलिड्स की आईलिड्स को मूव करना है। तो उसके लिए सेंट्रल नर्व सिस्टम क्या रिलीज करेगा, एसिटाइल कोलाइन ए, राइट। तो दिस एसिटाइल कोलाइन ए विल पास द मैसेज, वो जनरेट करेगा एक्टिव पोटेंशियल, एंड वो एक्टिव पोटेंशियल की वजह से हमारे बॉडी के जो कैल्शियम्स है, वो कैल्शियम्स विल बाइंड टू द ट्रोपोनिन, राइट। हमारे मसल में कैल्शियम होता है, वो कैल्शियम कहाँ पे बाइंड करेगा, ट्रोपोनिन पे बाइंड करेगा, एंड ट्रोपोनिन विल रिमूव फ्रॉम एक्टिन बाइंडिंग साइट। एक्टिन बाइंडिंग साइट जो मायोसिन के ऊपर है वहां से वो रिमूव कर जाएगा, मूव करेगा मतलब स्लाइड होगा, राइट। वो स्लाइड होगा और जो एटीपी बाइंडिंग साइट है वहां पे एटीपी बाइंड करेगा। जैसे ही स्लाइड होगा उसको एनर्जी की जरूरत होगी, वो एटीपी विल कन्वर्ट इनटू एडीपी प्लस पीआई, वो एनर्जी यूटिलाइज करके वहां पे फॉस्फेट मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। दैट वी कैन सी इन डिटेल इन दिस स्लाइड। हियर आई हैव शोन यू हाउ द बेसिक मैकेनिज्म इज हैपनिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, ओके सो आप इधर देखिए, जो बेसिक मैकेनिज्म है उसमें क्या होता है, एटीपी बाइंड करता है। एटीपी किसके लिए चाहिए, हमें शक्ति चाहिए टू मूव अवर मसल।
तो यहाँ पे जहाँ पे मायोसिन के साथ ये जो सर्प जैसा दिख रहा है वो क्या है, मायोसिन फिलामेंट है। ये टॉप ऑफ द मायोसिन उसका हेड है, और ये जो फिलामेंट जैसा ऊपर दिख रहा है वो क्या है, एक्टिन का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जहाँ पे एक्टिन बाइंड हुआ है वहां पे उसके साथ एनर्जी कंपाउंड भी बाइंड हुआ है, राइट। तो उसके साथ उसने क्रॉस ब्रिज बनाया। क्रॉस ब्रिज मतलब कुछ नहीं, सिर्फ बॉन्ड बॉन्ड बना के उसने स्लाइटली मूव किया। कैसे मूव किया, ट्रोपोनिन को रिलीज करके स्लाइटली मूव कर दिया। वो फिर से ट्रोपोनिन को यहाँ से थर्ड स्टेज में आप देखिए, ट्रोपोनिन को मूव करके उसने धक्का लगा दिया, एंड नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल इज जंप अक्रॉस दी मायोसिन। मायोसिन के पास नेक्स्ट अभी एटीपी भी है, और नेक्स्ट मसल के ट्रोपोनिन के साथ वो बाइंड भी करेगा। तो ऐसे वो, अगर आप यहाँ पे देखें तो इफ दिस इज दी मायोसिन मॉलिक्यूल, यहाँ पे मेरे मसल बाइंड हुए और मायोसिन ने ये मसल को ऐसे मूव कर दिया है। नाउ मायोसिन इज अगेन फ्री, वो इधर बाइंड करेगा, फिर उसने स्लाइड कर दिया, अगेन इट विल बी फ्री एंड इट विल बी स्लाइड, लाइक दिस इट विल बी मूव। दिस इज एन बेसिक मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये सब जो मैंने लिखा है वो मैंने अभी इमेज के थ्रू बोला है, वो ही मटेरियल है। यू कैन गो विथ दिस कंटेंट इन डिटेल after the session, and you can call me at any time, you can mail me, or you can write in chat box also. Okay, so this is the image of relaxed contracting and maximum contracted muscles. You can see here the pattern of different A band, I band and H band. Now what you have to remember, आपको क्या याद रखना है कि H zone क्या होता है, I band क्या होता है, A band क्या होता है। उसके बाद you can clearly imagine this thing कि relaxed position में हमारे मसल में एक्टिन मायोसिन का ओवरलैपिंग क्या होता है। कॉन्ट्रैक्टिंग कंडीशन में हमारे मसल में एक्टिन मायोसिन का पोजीशन क्या होगा, एंड मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टेड होगा तब एक्टिन मायोसिन विल फुल्ली ओवरलैप्ड, एंड उसके टाइम आपको जो ब्लैंक वाला एज जोन है वो मिलेगा नहीं। Okay, next will be the joints. How the joints are working, how many types of joints are there. You can easily imagine the type of joints. कहाँ कहाँ पे joints होते हैं, हाथ के बीच में, fingers के बीच में, fibrial joints. There are three different joints, right? एक तो हम easily कह ही सकते हैं कि ये मेरा joint paining है, मतलब कि एक ऐसा joints जहाँ पे synovial fluid जो दो bones के बीच में होता है, वो साइनोवियल फ्लूइड की वजह से जो जॉइंट कनेक्शन हो रहा है, दैट इज नोन एज साइनोवियल जॉइंट। नेक्स्ट विल बी कार्टिलेज जॉइंट एंड फिब्रस जॉइंट। जॉइंट्स बेसिकली काम क्या करता है, इट्स एन लोकोमोटरी, इट इज हैविंग लोकोमोटरी फंक्शन कि वो एक चीज को मूव करने में आपकी हेल्प करता है। Fibrous joints do not allow any movements present in flat skull bones or to form the cranium. ये जो fibrous जो भी portion of the skull, you can take any example, वहाँ पे fibrous joints होते हैं जो cranium बनाते हैं। It not allow you to move. हमारा हाथ जो है, fingers है, वो एक joint दूसरे joint के साथ connected है, पर ऐसा हम निकाल नहीं सकते ना, right? Cartilage joints, bones are held together with the help of cartilage present in the vertebrate. Vertebrate animal के अंदर cartilage होती है, उसकी वजह से दो bones एक दूसरे के साथ वो synchronization करके रहते हैं। साइनोवियल, एज वी टोल्ड, की मसल के बीच में दो मेन बॉन्स के बीच में जो फ्लूइड होता है उसकी वजह से जो मूवमेंट पॉसिबल है, दैट इज नोन एज साइनोवियल joints. You can take the example of these things: ball and socket joints, hinge joint, pivot joints, and gliding joints, all that. Yeah, next is the disorders कि क्या क्या problems हो सकते हैं in muscular and skeletal system. The problems can be because of excessive amount of some chemical, or you can say decrease or lacking amount of some chemicals. But obvious हम बोलते हैं कि muscle pain हो रहा है, क्यों हो रहा है?
It can be because of the actin myosin, it can be because of the calcium, right? हमने calcium का बहुत सुना होता है. On basis of that, I have enlisted few disorders here. कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जो ऑटो इम्यून सिस्टम की वजह से है, हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करती है इसलिए है. कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे हैं कि हमारी बॉडी को रिस्पॉन्ड तो प्रॉपर ही करना है पर उसके पास सफिशिएंट केमिकल्स नहीं है, राइट? सफिशिएंट विटामिन्स नहीं है तो उसको फोर्स लगाने के लिए आयंस भी नहीं है और कुछ एंजाइम्स की वजह से भी होता है. और इट कैन बी पॉसिबल कि हमारे पास जो बेसिक फ्लूइड्स होना चाहिए वो बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर रही है. ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द डिसऑर्डर which is an autoimmune disorder affecting neuromuscular junction leading to fatigue, weakness and paralysis of the skeletal muscle. Skeletal system में जो भी मसल है उसका पैरालिसिस हो सकता है. हम फैटिक कंडीशन में कभी भी जा सकते हैं. वीकनिंग होता है कि यार मसल पेन हो रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, इट कैन बी बिकॉज ऑफ ग्रेविस डिसऑर्डर. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, दिस इज वेरी कॉमन. प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर. हमारे पेरेंट्स को है तो हमें कंटिन्यू होगा. दैट विल बी द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. कि कुछ पेन्स हम बोलते हैं कि ये मेरी मम्मी को भी है, मेरे पापा को भी है, तो मुझे भी कंटिन्यू वो रहेगा. दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिलता है. या टिटनी, रैपिड स्पाज्म, कहीं पे रैपिड स्पाज्मिक प्रॉब्लम हो जाता है इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड. बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम की लैकिंग की वजह से टिटनी हो सकता है. आर्थराइटिस हो सकता है, दैट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स. जॉइंट से जहाँ पे भी इधर जॉइंट से दैट कैन बी इन्फ्लामेटेड, उसकी वजह से हो सकता है, उसको बोलते हैं आर्थराइटिस. ओस्टियोपोरोसिस, जनरली यंग पीपल में ये नहीं होता है. विद द एज इट विल इंक्रीज. आपकी एज जो है वो इफ इट इज above 50 you are having chance of osteoporosis which basically denotes the mass reduction in bones. age related disorder है which characterized by the decrease in bone mass. bone जो है हमारा वो इतना मजबूत नहीं रहता, उसकी वजह से osteoporosis हो जाता है. And the gut, which is clear indication of the inflammation of joints due to accumulation of uric acid crystals. That's why we are telling कि uric acid को अगर body से निकालना है तो you have to have more amount of water. water intake बढ़ाने से हम ये बहुत सारी चीजें हैं जो उसका, अगर बॉडी के पास कैल्शियम है और वो प्रॉपर लोकेशन पे पहुंच नहीं सकता तो कौन हेल्प करेगा, बट ऑब्वियस वाटर मॉलिक्यूल्स विल हेल्प. तो इसकी वजह से हम लोग कई सारे डिसऑर्डर्स को फैच कर सकते हैं और ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज टास्क. प्लीज राइट एनी डाउट इन योर question chat. I will reply here. And next will be the thank you so much from RK University and School of Science. Hope you like the video and please contact us for admission. If you are having any doubt, you can call on the inquiry number or you can mail us also. These are the helpline number. आप इस नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको एडमिशन के बारे में और कोर्सेज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. Thank you so much. You can write your doubts in the chat box.